Hello, good evening to all engineers, electrical engineering students as well as my electrical engineers. A very good evening to all of you, good morning to all of you, and good afternoon to all of you. Actually, after a long time, I'm coming before you because I was busy with class 10th and class 12th students, and you in the meantime you didn't call me or didn't give any response. You were busy with your works, I know. So ultimately got a call from my student that why sir you are not uploading any lecture um, on transformer, why. So that's gave me a force to upload a new lecture on transformer for you only. Okay, so now I am going to extend my lecture from the lecture number 2, that is, where we have derived the expression for transformation ratio, and where we have derived the expression for EMF, and plotted a little or a portion of phasor diagram. So after that lecture I would like to continue. Okay, so now the extension of the lecture will be from that place, right? So this I am going to draw for you, and please go through it, and wherever you are finding any problem, any difficulty, or any important thing, so let me know. Okay, so now the last lecture was confined to, where I just recall you. Yes, this was E1, and is this was equal to 4.44 f N1. Just EP, this was NP, and this is phi m, right? This was our first equation, and secondary voltage we have derived FNS, and this is phi m. This was our second equation, right? And the transformation ratio we have derived EP upon ES is equal to IS by IP, and is equal to NP by NS. NP by NS. This one, and this was our ratio, transformation ratio, and I told you that assume, this assumption will help you a lot. Assume A greater than 1 for TWT. And what is TWT? And that is two winding transformer. So A is greater than 1, and we will assume for A less than 1 for auto transformer. I am making you clear at this moment, right? Phi, we have taken phi is equal to phi m sine omega t Weber. This we have already derived. Okay, on the basis of that you have derived, and this phi, and this is E1 and E2, and this is your reference, and this we have V. So once again I'll tell you the story about V, why V is going upward. Okay, why it is going upward I'll explain here only, right? So before that, and one more thing I would like to recall, that nameplate rating of the transformer, that is very important. Nameplate rating of the transformer, nameplate rating of transformer, right? Nameplate rating is very important thing, and we have to follow while installing, or while we are purchasing the transformer. We There is a nameplate, there is a plate that is installed, that is uh, marked on the transformer. So first impression, that you will see the nameplate rating of that transformer, and then after you will go for purchasing it. Then after look into frequency and what type of cooling it is providing, what type of test, by asking for मैनुअल में सारी चीज़ें दी होती हैं, वहाँ से आप इसको रेफर करेंगे. So first of all, this is phi, and phi, I told you that EP and ES both lags phi by an angle of 90 degree.
And this E1 and E2, this is EP and ES. On the basis of EP and ES, we have categorized our transformer, step up transformer and a step down transformer. So fine. So now nameplate rating. Nameplate rating is what? You will go to purchase transformer and there will be a nameplate rating kVA or MVA. Fine. Either this is kVA or something kVA, S kVA or MVA. Then after you will get in single phase transformer I am talking about. In single phase transformer I am talking about, and then you see X volt and Y volt. Then again you see so this is frequency, right? And then here single phase or three phase, later on I'll tell you. Single phase, and this is core or shell type, core type or shell type. This is not very important and this is not every time this is mentioned, but this is again core type and shell. This comes under nameplate rating. Fine. And then after a number of things, cooling, what type of cooling we are providing. Okay, fine. So these three things are, these three things are very important. अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास this is in maybe kV and this is in kV, ये किलो वोल्ट में हो सकता है. अगर यही हमारा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होगा, so this is S kVA और MVA, right? S kVA और MVA, और यहाँ पर होगा X kV, right? and Y kV, right? यहाँ पर आपका आएगा डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा, वट एवर, डेल्टा स्टार और स्टार, 50 hertz, and this is three phase and other things. Okay, so these are main things we have to count for nameplate rating, and it helps us a lot. For three phase transformer, this is for three phase transformer, ये हमारी रेटिंग होगी थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो होगी, वाइंडिंग कनेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस. बट मेनली हियर we are concentrating on single phase transformer, that is single phase transformer, right? So now I would like to again plot the graph of or circuit diagram of transformer, single phase transformer. So here this rubbing it, and this is the deleted portion on the board, and now I would like to draw again our transformer. Fine. And this is, this is primary winding where we have connected primary voltage, and this is IP. V is equal to Vm sine omega t, and here this is providing NP number of turns. Here we are providing NS secondary number of turns, and here it is, this is load. Fine, this is load, and this is V2, right? And this is IS, IPIS, and this is the path. And I told you earlier why we are choosing minimum path, why the middle path, why we are taking, we have earlier discussed in your previous lecture, so you can go through it, because here the maximum value of flux we are getting. This is the core part, and here we are getting maximum flux. That's why we point mean path length. This is called, when we are discussing, or when we will be studying magnetic circuit. In magnetic circuit, it is told that you have to take the path of flux, that is mean path length. This is called mean path length. This is called mean path, middle point. That's why we call it mean path length. Okay. Now, so here it is induced EMF primary, and here it is induced EMF secondary. All right, I hope you are getting it. Okay, now so for example, अगर हम बात करें नेम प्लेट रेटिंग की, हम नेम प्लेट रेटिंग की बात करते हैं, and this is SKVA लेता हूँ मैं, SKVA 1100 volt by 110 volt, and this is single phase transformer. So now the question comes, what is SKVA? So I am telling you, S is equal to KVA rating of the transformer. This is KVA rating
ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड माइंड इट, पावर फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन लोड एंड हियर मेनली वाइल डिजाइनिंग ट्रांसफॉर्मर वी आर मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन इंसुलेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है इंसुलेशन की वजह से। हमारा ट्रांसफॉर्मर जब डैमेज करता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन हमारा फेल हो जाता है। आपने देखा होगा, यू हैव हर्ड दैट ट्रांसफॉर्मर्स आर बीइंग डैमेज्ड और in this summer season, not in rainy day or not in winter hardly there is fault, due to fault, some fault only the transformer will be disturbed, their operation will be disturbed. Otherwise in summer every time frequently there is a problem with transformer, frequently. Why? The reason is because we are in summer, we are running our AC, cooler, fan, everything, and on same time this transformer is being operated at more than full load, not I'm talking about not full load, more than full load. It means current I square R is flowing maximum current is flowing. So maximum current is flowing means if that transformer has to carry full load current 100 ampere, but you are now taking it or you are giving into primary of this transformer 110, 115, 120 ampere, what will happen? So this will produce I square R loss. And what is the effect of I square loss? I square R loss produces heat in the winding. It produces heat in the winding, and because of that heat, your core becomes heated up. And what is the result? Result is insulation failure, because temperature rise, and because of that temperature rise insulation melts, and that melting of insulation results in short circuit. Okay, so our transformer get damaged because internally and externally both where temperature is high, बाहर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा 40-45, अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन फेल रहती है। हम यहाँ जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो मेनली हमारी कंसंट्रेशन होती है कि हम उसको बढ़िया से बढ़िया इंसुलेशन दें और वहाँ तक हम नॉर्मल इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट ही ना होने दें। वो तो हम ज़िद्दी हैं, इसलिए अगर 1000 kVA का ट्रांसफार्मर खरीदेंगे तो बिना 1200 तक यूज़ किए हम मानेंगे ही नहीं। जब तक हम 1200 नहीं इससे वसूल लेते तब तक हम नहीं मानने वाले। हम कभी भी इस बात को फॉलो नहीं करते कि दिस ट्रांसफार्मर हैज़ बीन डिजाइन फॉर 1000 kVA, तो ट्राई टू गेट स्टक टू 1000 kVA ओनली, राइट? नो, वी हैव टू गो फॉर मोर देन दैट। कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पर, कोई स्विच गियर देखने वाला नहीं है, तो ओवरलोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, एवरी टाइम देयर इज ओवरलोडिंग। जाड़े में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लिया जाए कि 1000 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर लिया आपने, दिस इज 1000 kVA का लिया आपने, 1000 आपका kVA है। इट मीन्स कि ये आपका जो रेटिंग है दिस इज इक्वल टू EP इंटू IP एंड दिस इज इक्वल टू ES इंटू IS, ये है आपका। ठीक है, ये अब जब आप इसमें लोड लगाओगे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में मैक्सिमम जो लोड्स हैं दे आर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, यानी कि 0.8, 0.75, 0.85, 9 तक पावर फैक्टर, 0.9 तक पावर फैक्टर होगी। दे आर लैगिंग पावर फैक्टर लोड, इनकी इसका मतलब कि इनकी पावर फैक्टर 1 तक नहीं जा सकती। तो मान लिया जाए कि आपने जो लोड यूज़ किया है दैट इज ओनली ऑफ 0.9 PF, तो जब आप पावर इससे लेंगे सो व्हाट विल बी द आउटपुट पावर? सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू ES into IS cos phi. And what ES and IS? This is 1000 kVA and 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप क्या होगा? 900 किलोवाट। सो ट्रांसफार्मर इज सेफ। आपने क्या किया? आपने तो अपनी जानकारी के मुताबिक इसको 1000 लगा दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर इज स्टिल ऑपरेटिंग बिलो देन दैट, और हमने जो इंसुलेशन सेलेक्ट कर रखा है वो इंसुलेशन सेलेक्ट कर रखा है इस kVA 1000 kVA तक टिकने वाला, तो हमारा इंसुलेशन सेफ रहेगा, ट्रांसफार्मर हमारा सेफ रहेगा। लेकिन हम मानने वाले नहीं, हम नहीं मानने वाले। हम तो ट्रांसफार्मर 1100 तक लेके जाएंगे ही जाएंगे। 1100 तक अगर नहीं बोलता तो हम 1200 भी लेकर जाएंगे। हम तो वहाँ तक ले जाने वाले हैं
जहाँ तक कि ट्रांसफार्मर से बूम से आवाज़ ना आ जाए और ट्रांसफार्मर से लाइट आपकी चली जाए, मतलब लाइट आना सप्लाई बंद हो जाए, तब तक हम उस पर लोड लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसको रेटिंग जब भी देंगे हम तो केवीए में देते हैं, और इसी केवीए के मुताबिक हम अपने इंसुलेशन को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट इज मैक्सिमम, सिलेक्शन इसी हमारे केवी रेटिंग के मुताबिक होती है, ताकि हम यहाँ तक इसको ऑपरेट कर सके। हम ये मानते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर होगा वो पढ़ा लिखा होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हम नहीं मानने वाले। हमें चाहे कमरे में कोई हो या ना हो, लाइट जलनी है। कमरे में कोई हो या ना हो, पंखा ऑन रहना है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल वी आर पेइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो क्यों सोचे भाई पे कर रहे हैं, आपका बताओ कितना बिल आया, पे कर रहे हैं। ठीक, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि अगर ये एनर्जी बचेगी तो एट द सेम टाइम ये एनर्जी किसी और कंज्यूमर को दी जाएगी, तो उस कंज्यूमर का भी बेनिफिट होगा। वो कंज्यूमर आपकी इस एनर्जी को जो आप यूज़ कर रहे हो उससे अगर बचा कर दोगे तो किसी और का भी भला होगा। हम ये कभी नहीं सोचते। ठीक है, ओके फाइन। नाउ अब बात आती है कि हमारी केवी रेटिंग की। तो यहाँ से हम केवी रेटिंग को ले लिया हमने, और ये हमने इस पर अपने इंसुलेशन को सेलेक्ट कर लिया, राइट। सो ईपी इंटू आई एस। अब बात आती है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो जो पहले आएगा, जो लेफ्ट में आएगा, वो आपका रेटेड प्राइमरी वोल्टेज होती है। रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज यानी कि रेटेड इंड्यूस ईएमएफ। इस वाइंडिंग में ईपी मिलेगा। आप कितना भी वोल्टेज दोगे इसी में ये ईपी आपको मिलेगा। और ये ईएस कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। दिस इज रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि ये यहाँ पर मिलेगा आपको। इतनी हम आपसे वादा करते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर बनाने वाला आपको वादा करता है कि हम इतना वोल्टेज देंगे, हम इतना वोल्टेज आपको देंगे। इसके लिए हमने डिज़ाइन किया है। अगर हम इतना नहीं देंगे तो आप हम पे क्लेम कर सकते हो कि तुमने ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ हमारे को वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हो कंपनी पर। लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आपको इतना देंगे। तो दिस इज रेटेड प्राइमरी वोल्टेज एंड दिस इज रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। तो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा हमारा, ये 1100 वोल्ट होगा। और रेटेड अगर हम सेकेंडरी करंट की बात करें, सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें, तो ये हमारा कितना होगा 110। तो करंट के बारे में तो कुछ भी नहीं है, क्या करें हम, करंट के बारे में कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर जब आपको इन्होंने ये दे दिया, इन्होंने ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया, क्या हम आईपी और आईएस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम आईपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम आईएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 kVA, राइट, and this is equal to EP into IP. So what will be IP? IP is equal to 1000 kVA and divided by EP. EP was जो पहले था, तो ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज आ गया 1100 वोल्ट, राइट। So this is your current, राइट। यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, ये वोल्ट से आपका वोल्ट कैंसिल आ गया, यानी कि 10 into 3 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। ठीक है, प्राइमरी करंट की वैल्यू आ गई, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसी 1000 kVA को हम 1000 kVA की बात करेंगे और इसको हम लिखेंगे ES इंटू आई एस। सो आई एस क्या होगा, 1000 इंटू 10 to the power 3 एंड डिवाइडेड बाई आई एस। आई एस तो मालूम नहीं, आई एस कैलकुलेट करना, ES मालूम है। सो दिस इज 110 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में इस बात का जिक्र किया था कि जहाँ पर हाई वोल्टेज होगी वहाँ पर करंट कम होगा, जहाँ पर वोल्टेज कम होगी वहाँ पर करंट ज़्यादा होगा। तो देखिए हाई वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा है तो ये आपकी करंट की वैल्यू जाएगी, कम आएगी। देखिए आप देखिए यहाँ पर ये कितना है, 100/10 इंटू 10 to the power 3, यानी कि आपका IS इज ग्रेटर देन IP एंड सिंस EP is less than ES is less than EP, यानी कि जहां पर वोल्टेज कम होगा वहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी और जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट की वैल्यू कम होगी। दिस इज द ओनली रीजन, राइट, ओके फाइन। अब आइए हम बात करते हैं अपने वोल्टेज की कि हमारा ये दोनों एक दूसरे को अपोज क्यों करेंगे। ठीक है, फाइन। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम ये बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव निगेटिव और ये हमारा आता है पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है ना, ये अपोज करते हैं। अब इनका काम क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर आपका
कैसा डैमेज होता है, थोड़ा सा इसकी भी कहानी आप सुन लीजिए। ट्रांसफार्मर को हम डिज़ाइन करते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कांस्टेंट फ्लक्स पर ऑपरेट होना चाहिए। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है डिज़ाइन करने का। ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेटेड ऑन कांस्टेंट फ्लक्स, और कांस्टेंट फ्लक्स भी होनी चाहिए सिचुएशन से ठीक पहले। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉ करके बताया था, हमने बी एच कर्व इसका दिखाया था, दिस इज बी एंड दिस इज एच, और ये बताया था कि बिफोर सिचुएशन, जस्ट बिफोर सिचुएशन हम अपने ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं। ये हम यहाँ से फ्लक्स लेते हैं वाई ए वाई ए वाई वाई। क्यों ऐसा? इसलिए कि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट भी रहे, और अगर सैचुरेशन की तरफ चला जाएगा तो आपका बिफोर सैचुरेशन है तो कांस्टेंट रहेगा, नेचर इसका मोर और लेस कांस्टेंट के पास ही रहेगा, और एंड मोर ओवर इट इज वेरिएबल विद टाइम। ओके, लेकिन जैसे ही आपका सिचुएशन पर जाएगा तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्लक्स जब कांस्टेंट हो तो डी फाई बाई डी टी नहीं होगी, और जब डी फाई बाई डी टी नहीं होगी तो आपका ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो बिफोर सैचुरेशन अगर रहेगा तो फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज भी रहेगा, और इसकी मैग्नीट्यूड भी मोर और लेस कांस्टेंट रहेगी। तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जस्ट बिफोर सैचुरेशन ट्रांसफार्मर को यूज करने की कोशिश करते हैं। ओके फाइन, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपकी ईपी और ईएस की, ठीक है। अब बात यहां पर आती है कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। आपने लोड बढ़ाया, राइट, जैसे ही आपने लोड बढ़ाया क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब आप लोड बढ़ाएंगे तो दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। याद रखिएगा, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहा जाता है इसको, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, हमेशा याद रखिएगा। एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। किसका? फ्लक्स का, ठीक है ना, फ्लक्स का। क्या होगा, जैसे ही आप इसको लोड लगाइएगा आपका करंट यहाँ पर बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो आपकी ईएमएफ यहाँ पर जो ईएस होगी वो घटेगी, और जैसे ही ये घटेगा क्या होगा, ईपी भी आपका घटेगा। एंड ईपी एंड ईएस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, आपका फ्लक्स भी घटेगा, ठीक है ना। जब ये घट जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ट्रांसफार्मर का ये वाला वाइंडिंग है जो सप्लाई से कहेगा कि भाई मेरे सेकेंडरी पर लोड लोगों ने बढ़ा दिया है, जरा मेरे को आईपी इंक्रीज कर दो। तो आईपी यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जब आईपी आपका इंक्रीज होगा तो आपका फाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फाई तब तक बढ़ेगा जब तक आपका पुराना वाला फ्लक्स आ जाएगा, तब तक कांस्टेंट नहीं होता, फ्लक्स आपका बढ़ा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ये बढ़ेगा, मतलब जितना ये बढ़ के इसने फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज किया, इसलिए इसको हम डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करते हैं, यानी कि ये फ्लक्स को घटाया जिससे कि आपकी ईएमएफ कम हो गई, उतना ही आईपी आपका बढ़ता है, यानी कि उतना ही आईपी आपका इंक्रीज होकर आपके फाई को पुराने कंडीशन में लेकर आता है कि फिर से मैंने फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया है, अब तुम आगे बढ़ो। तो इसका काम क्या हुआ, इसका काम हुआ फ्लक्स फाइएम को बूस्टअप देना, ऐड करना कि तुम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और ये क्या करता है, ये जनता के साथ हो जाता है, और जैसे जैसे ये करंट बढ़ते चले जाते हैं इसका काम है फिर इसको घटाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर तब तक झेलता है, तब तक झेलेगा जब तक इसकी आई स्क्वायर आर की वजह से इतनी ना हीट प्रोड्यूस हो जाए कि जिसमें कि हीटिंग से उसकी इंसुलेशन फेल्योर हो जाए और ट्रांसफार्मर बूम डैमेज हो जाए, ठीक है, तब तक झेलता है। अब क्या होगा, इसके पहले स्विच गेट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि पहले ही रुक जाए, और ये सब प्रोटेक्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब बाजार की सस्ती तो चीज़ है नहीं कि जब जाया मन करा तब खरीद के लेके चले आए। ट्रांसफार्मर इज वेरी कॉस्टली, कॉस्ट इसके लैक्स में जाती है, और पूरी टीम बैठती है, पूरा सिस्टम बैठता है, उसके बाद उसको परचेज किया जाता है, उसमें मेंशन करना होता है कि किस वजह से ये क्या हुआ, फेल हुआ, किस वजह से ये डैमेज हुआ, कौन इसका इंचार्ज था, तो सब चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम है इसका। तो अब इसके बाद प्रोटेक्शन कर दिया जाता है कि भाई जैसे ही अगर ऐसी नौबत आए तो बीच में ही फ्यूज़ ब्रेक हो जाए। खैर बहरहाल फ्यूज़ नहीं ब्रेक हुआ, फिर भी हम यूज़ करते चले गए। अब क्या हुआ, तो ट्रांसफार्मर कब तक झेलता रहेगा आपको, तो ट्रांसफार्मर आपके लोड को तब तक झेलता रहेगा जब तक इस सप्लाई के पास करंट देने को है, यानी कि प्राइमरी करंट देने को है, क्योंकि ये भी कहीं से वोल्टेज ले रहा है, इसके पास भी फिक्स कहानी है। ये भी ऐसा नहीं है कि आज 10 मेगावाट है, परसों 10 मेगा वोल्ट है, आज 25 मेगा वोल्ट होगा, ये बढ़ता रहेगा, ये भी फिक्स है।
तो इसके पास जब तक देने की कैपेसिटी होती है, किसके पास, प्राइमरी की वोल्टेज को, और जब तक इसके पास लेने की कैपेसिटी होती है, इन द मीन टाइम इसको जब तक झेलने की कैपेसिटी रहेगी तभी तक आपका ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा। अगर इन दोनों ने मिसमैनेजमेंट हुआ, इन दोनों में अगर मिसमैनेजमेंट हुआ, यानी कि इसकी देने की कैपेसिटी खत्म हो गई, तब भी आपका आगे ऑपरेट नहीं होगा। और अगर इसकी लेने देने की कैपेसिटी, इसकी भी खूब ये सप्लाई कर रहा है, ये खूब दे रहा है, लेकिन बेचारा ये कह रहा है कि भाई साहब अब रुक जाओ, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्मी को झेल सकूं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंसुलेशन जो होगी, कोर की इंसुलेशन जो होगी वो आपकी पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी, आपका कोर मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, डैमेज कर जाएगा। ठीक है, तो ये है जब तक लेने और देने की इनकी ताकत होती है, और जब तक इन भाई साहब को I² R लॉस को सहने की, यानी कि हीट को बर्दाश्त करने की ताकत होती है, तभी तक आपका ट्रांसफार्मर जो है वो ऑपरेट हो सकता है, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगा। फाइन। तो अगर हम अब बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों का नेचर क्या हुआ, इन दोनों का नेचर अब क्या होता है। अब हम फैराडे साहब की बात करें और लेंज की बात करें, तो लेंज साहब ये कहते हैं कि भाई जो जिसको प्रोड्यूस करेगा वो इसको अपोज करेगा, तो ये आपका किसको अपोज करेगा, इन भाई साहब को अपोज करेगा। तो इन दोनों का जो नेचर होता है वो हमारा अपोजिट होता है। ठीक है, इन दोनों का नेचर अपोजिट होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने वोल्टेज को, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज को हम कहाँ रखते हैं, ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हमारा फाई आ गया, और ये हमारा E1 E2 मतलब EP और ES आ गया, और ये हमारा वोल्टेज V जिसको आपने अप्लाई किया था, दोनों 180 डिग्री पर आते हैं। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पर आती है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका वाइंडिंग कैसे इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करें ताकि हम यहाँ पर वोल्टेज और उसकी कैलकुलेशन कर सकें, राइट।